Hello everyone, again welcome in video lecture class. Now today I am going to talk about the topic of creating an inclusive school, national policy for person with disabilities 2006 with reference to inclusive education. समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बनी थी 2006 में, उसके बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। यह बीएड सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आपकी पेपर नंबर 12 में है, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। जब कहीं भी अगर इस टॉपिक की बात करते हैं तो बड़ी ही एक बात जो है वो या हृदय में सामने स्पष्ट तौर पर अवतरित होती है कि समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का एक नागरिक है, लेकिन कहीं न कहीं उसे समाज में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, यानी समाज की मूल धारा से वह अलग रहता है। समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। क्यों आखिर नहीं करता है, इस पर सोचने और समझने के विचार है। प्रश्न ये उठता है कि जब व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं, तो वही समाज उस व्यक्ति को स्वीकार क्यों नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात जो आती है वह सोच की आती है, यानी विचार की जो भिन्नताएं हैं उससे ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि समाज जो असमर्थ या जो असहाय या जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें स्वीकार करना पसंद नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ों को, जो ये समस्याएं थी विकलांग व्यक्ति को, उनको ध्यान में रखते हुए समय समय पर कुछ लीगल प्रोविजन किए हैं, चाहे प्रिवेंशन ऑफ डिजेबिलिटी एक्ट हो, रिहेबिलिटेशन हो, या उन्हें कैसे बचाया जाए उस पर हो। 92 का एक्ट हो, 95 का हो या 99 का हो, 3 एक्ट बने। बाद में जो है वह 2002 के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी ये चीज़ें आई थी और 2006 में भी ये बातें स्पष्ट आई। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें, दैट मीन्स नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी 2006 क्या कहता है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये बातें जो है वह जानना समझना अति आवश्यक है। इससे संबंधित तरह तरह के कुछ विचार हैं, कुछ विचारधाराएँ निकल कर भी आई हैं, समाज की जो बातें हैं वो भी सामने आई हैं। इन सभी चीज़ों का समावेश अभी जो मैं फैक्ट अब आगे बताने जा रहा हूँ उसमें स्पष्ट कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो नीतियाँ पॉलिसी जो बनी हुई हैं उस पॉलिसियों में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, उन सभी चीज़ों का भी समावेश मैं अब आगे करने जा रहा हूँ। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। Now, first describe in English pattern. National Policy for Person with Disability 2006 with reference to inclusive education. Some basic facts related to inclusive education. The Constitution of India ensures equality, freedom, justice, and dignity of all individuals, along with an inclusive society for all, including persons with disabilities. It has been realized that a majority of persons with disabilities can lead a better quality of life if they have equal opportunities and effective access to rehabilitation measures. Now, second point, according to the census 2001, there are 2.19 crore persons with disabilities in India who constitute 2.13% of the total population. This includes persons with visual, hearing, speech, locomotors, and mental disabilities. 75% of persons with disabilities live in rural areas. 49% of disabled population is literate and only 34% are employed. The earlier emphasis on medical rehabilitation has now been replaced by an emphasis on social rehabilitation. Number 5, there has been an increasing recognition of abilities of persons with disabilities and emphasis on mainstreaming them in the society based on their capabilities. In addition to the legal framework, extensive infrastructure has been developed. Number 7, there are 5 composite rehabilitation centers for regional rehabilitation centers and 120
district disability rehabilitation center providing various kinds of rehabilitation services to persons with disability. Number 8, National Handicapped and Finance Development Corporation has been providing loan on concessional terms for undertaking self-employment ventures by the persons with disabilities through state channelizing agencies. Panchayati Raj institutions at village level, intermediary level and district level have been entrusted with the welfare of persons with disability. The last point, the national policy recognizes that persons with disabilities are valuable human resource for the country and seeks to create an environment that provides them equal opportunities, protection of their right and full participation in society. Now, three important act. The Ministry of Social Justice and Empowerment National Policy for Persons with Disabilities Government of India has enacted three legislations for person with disability, which number 1, person with disability equal opportunities protection of right and full participation act 1995, which provides for education, employment, creation of barrier-free environment, social security, etc. Second, National Trust for Welfare of Person with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, and Multiple Disability Act 1999 has provision for legal guardianship of the four categories and creation of enabling environment for as much independent living as possible. Number 3, Rehabilitation Council of India Act 1992 deals with the development of manpower for providing rehabilitation services. That is the three most important act for the development of the disability person. National Policy for Persons with Disability Act 2006. On the basis of above all three act, the focus of the policy shall be on the following. Number 1, National Policy for Persons with Disabilities and its fundamental aspects. Number 2, principal areas of intervention. Now, number 1 is described. National Policy for Persons with Disabilities and its fundamental aspects have described under the following 10 headings. Number 1, prevention of disabilities. Number 2, rehabilitation measures. Number 3, women with disabilities. Number 4, children with disabilities. Number 5, barrier-free environment. Number 6, issue of disability certificate. Number 7, social security. Promotion of non-government organization. Number 8. Number 9, collection of regular information on person with disability. Number 10, research. Number 11, sports, recreation and cultural life. Number 2, amendments to existing act dealing with the person with disabilities. नाउ इन हिंदी, अब मैं थोड़ी इसकी बातों को हिंदी में स्पष्ट कर दूं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 परिचय। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करता है और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है। हाल के वर्षों में विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन रहे हैं। यह एहसास किया गया कि विकलांग व्यक्ति जीवन की बेहतर गुणवत्ता का नेतृत्व कर सकते हैं अगर उन्हें वह सम्मान, अवसरों और पुनर्वास उपायों के लिए प्रभावपूर्ण समाज पूर्ण भागीदारी प्रदान करें। नंबर 2, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ लोग विकलांग हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 2.13% है। इसमें दृश्य, श्रवण, भाषण, लोकोमोटर और मानसिक विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। नंबर 3, विकलांग लोगों में से 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, 49% यानी 49% विकलांग हैं और जनसंख्या साक्षर है और केवल 34% कार्यरत है। नंबर 4, पहले चिकित्सा पुनर्वास पर जोर दिया गया, अब सामाजिक पुनर्वास पर जोर देने के द्वारा स्थापित किया गया है। नंबर 5, विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के आधार पर समाज में उन्हें मुख्य धारा में लाने पर जोर
क्षमताओं की बढ़ती पहचान रही है। कानूनी ढांचे के अलावा व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। नंबर 7, 5 समग्र पुनर्वास केंद्र, 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र, 120 जिले हैं विकलांगता पुनर्वास केंद्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। नंबर 8, राज्य के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार उपक्रम शुरू करने के लिए रियायती शर्तों पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम ऋण प्रदान करता रहा है। विकलांग व्यक्तियों का कल्याण ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को सौंपा गया है। राष्ट्रीय नीति यह मानती है कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन है, इसलिए उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहती है जो उन्हें समान अवसर प्रदान करे, उनके अधिकारों की सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान करे। अब जो 3 एक्ट जो महत्वपूर्ण है इसके पहले जो बने हैं 2006 के पहले, उसके बारे में बता दूं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में 3 विधान बनाए। नंबर 1, विकलांगता वाले व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों और संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 जो शिक्षा, रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है। नंबर 2, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रतिशोध और कई प्रकार के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट विकलांगता अधिनियम 1999 में 4 श्रेणियों और निर्माण के कानूनी संरक्षण के प्रावधान हैं। जितना संभव हो उतना स्वतंत्र रहने के लिए पर्यावरण को सक्षम करना है। नंबर 3, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 प्रदान करने के लिए जनशक्ति के विकास से संबंधित है पुनर्वास सेवाएं। अब मैं जो पहला जो आधार है, ऊपर जो 3 जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार 2 महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, 2006 की नीति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों और इसके मूलभूत पहलुओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 जो है। दूसरा, हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र है, यानी कहाँ पर। नंबर 1 को मैं पहले क्लियर कर दूँ। विकलांग व्यक्तियों और इसके मूलभूत पहलुओं के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत 10 मुख्य बिंदु हैं। विकलांगों की रोकथाम, पुनर्वास के उपाय, विकलांग महिलाएं, विकलांग बच्चे, अवरोध मुक्त वातावरण, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना, सामाजिक सुरक्षा, गैर सरकारी संगठन NGO को बढ़ावा देना, विकलांग व्यक्तियों पर नियमित जानकारी संग्रह, अनुसंधान। नंबर 11 में खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन। 12, विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले मौजूदा अधिनियमों में संशोधन। इस प्रकार से मैंने ये 10 पॉइंट जो कि नाम बताया। अगले लेक्चर में इस 10 पॉइंट को स्पष्ट करूंगा, साथ ही साथ जो ये बातें कही हैं हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं उसको भी स्पष्ट करूंगा, तब ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। ऊपर जो मैं अभी वर्णित डिस्कशन या जो पर चर्चा की गई 2006 जो राष्ट्रीय नीति थी विकलांग व्यक्तियों के लिए, उस नीति के अनुसार ये चीज़ें हैं स्पष्ट कि ये जो 10 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह सार्थक हैं और विकलांग व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मददगार होंगे ये। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में कहूँगा, लेकिन अभी मैं स्पष्ट कर दूँ कि शुरुआत में जो मैंने 10 जो फैक्ट पॉइंट बताए वो कहीं ना कहीं आगे जो नीति जो 3 बनी हुई थी उस नीति के अनुसार अगर सिस्टमेटिक वे में काम किया जाए तो विकलांग व्यक्तियों के लिए निश्चित ही कल्याण कारक होगा। और जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो कहीं ना कहीं पंचायती स्तर पर हों या राज्य स्तर पर है NGO के द्वारा हों, वो निश्चित ही विकलांग व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं जो कि सराहनीय है। आवश्यकता से विशेष की है कि सामाजिक स्तर पर और जो विकलांग व्यक्ति के परिवार के लोग हैं उन्हें कैसे जागरूक किया जाए, इस पर विचारणीय एक प्रश्न अवश्य ही है। अब अगले क्लास में मैं इससे संबंधित और आपसे विस्तार से बात करूँगा। अब लास्ट में आप अगर चाहते हैं कि वीडियो आपको तुरंत समय पर उपलब्ध हो जाए तो निश्चित ही YouTube चैनल को, मेरे जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप वीडियो से संबंधित या तथ्य टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो निश्चित ही प्रश्न आप हमें भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।